Hi everybody, welcome back to my channel. Today in this video I'll be continuing oral surgery synopsis, and in the previous video we have talked about different types of medical emergencies and contraindications, and today in this table we will be talking about the drugs, okay, particularly anesthetic drugs commonly used. Okay, so this table we will be doing this, and if you're new on my channel I want to say that you can watch all the videos if you want to uh, get a good knowledge of uh, what we should know about a particular exam. Okay, so particular content is there. Okay, you can grab all the information if you want to pursue any higher courses after BDS, and you can also recommend it to your friends and families who are in the same field and want to get into another college or admission. Okay, and if you have any query, and if you want to suggest me any other thing like MCQs or something else, you can comment down below. As well as don't forget to give a like, because your like really motivates me to make more and more. As well as don't forget to subscribe, and don't forget to hit the notification bell so that every time I upload a video you will be notified. So let's get started. This table is the pharmacology of commonly used anesthetic drugs. The commonly used drugs for anesthesia that we use in oral surgery, and what are their features. So, ether, first of all, talking about ether, which is also called as sweet oil of vitriol. And the blood sugar levels increase with ether anesthesia, therefore should not or should be cautiously used in the patients having diabetes. ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि अगर आप ईथर यूज़ करते हो एज एनेस्थेटिक एजेंट, तो ईथर जो है आपका स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियो होता है, इट कैन इंक्रीज योर ब्लड शुगर लेवल्स। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी ध्यान से देख के देना पड़ता है ईथर को। सो बी अवेयर अबाउट ईथर बिकॉज ईथर इंक्रीजेज sugar levels. Now next is ethyl chloride. Now this ethyl chloride is what, like, heart muscles are directly depressed and cardiac arrest and respiratory arrest has been reported. So adrenaline increases myocardial irritability during ethyl chloride anesthesia. Okay, so ethyl chloride अगर आप anesthesia दे रहे हो, ठीक है, उसमें vasoconstrictor अगर आपका एड्रेलिन है, तो ये जो एड्रेलिन है ये मायोकार्डियम इरिटेटिबिलिटी कॉज कर सकता है जब आप इसको इथाइल क्लोराइड एनेस्थीसिया के साथ दोगे। तो इसलिए इसको नहीं दिया जाता है इथाइल क्लोराइड के साथ, बिकॉज इथाइल क्लोराइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो हार्ट को डिप्रेस कर सकता है, प्लस कार्डिक अरेस्ट कर सकता है और रेस्पिरेटरी अरेस्ट कर सकता है। मसल्स पे इसका डिप्रेसिंग एक्शन रहता है। सो डोंट गिव इथाइल क्लोराइड, एंड डोंट गिव इथाइल क्लोराइड विद एड्रेलिन, बिकॉज एड्रेलिन फर्दर increases the irritability of myocardium. Next, talk about halothane. Now halothane depresses myocardium. It also depresses myocardium. Okay, cardiac arrest has been reported following adrenaline infiltration during halothanesis. Just same thing. वहाँ पे मायोकार्डियम इरिटेटिबिलिटी आपको दिखाई दे रही थी, यहाँ पे जो है कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो हैलोथेन जो है वो भी डिप्रेस करता है हार्ट को। तो हैलोथेन अगर आप एड्रेलिन के साथ इन्फिल्ट्रेट करवाओगे तो इट कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट। ओके, it can cause bronchodilation. Okay, therefore can be used safely in the patients with bronchospasms, emphysemas and chronic bronchitis. जिन लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों में बहुत इजीली आप हेलोथेन यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वो हेल्प करता है ब्रोंकोडाइलेशन में। तो इट कैन बी रिवीलिंग इन ब्रोंकोस्पैज्म पेशेंट्स, इन emphysema and in bronchitis, but it has opposite action on the heart. It can depress heart, so heart patients में आपको उसको देखना पड़ता है। And it causes moderate relaxation of skeletal muscles, hence the requirement of non-polarizing muscle relaxant is decreased. मसल्स पे, स्केलेटल मसल्स पे इसका रिलैक्सिंग एक्शन होता है, तो ये स्केलेटल मसल्स पे अच्छा एक्शन कर रहा है। और जो हमारा लंग्स का सिस्टम है उस पर भी अच्छा वाला एक्ट कर रहा है, मतलब डायलेट कर रहा है और अस्थमा वगैरह में और ब्रोंकोस्पाज्म में यूज़ कर सकते हैं। बट हार्ट पे इसका इफ़ेक्ट बहुत उल्टा है, इसलिए हार्ट पेशेंट्स में देख के देना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव nitrous oxide. It has a lot of features. So it is firstly prepared by Priestley, and anesthetic properties are suggested by Humphrey Davy. Now Horace Wells was the first person who used it in dentistry,
and had one of his own tooth extracted painlessly. सो हेरासेवल्स ने क्या किया था, अपना ही खुद का दांत इसको यूज़ करके निकाला था, तो उसको पेन नहीं हुआ था इस चीज़ में, तो दैट कैन बी इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इट इज़ एलिमिनेटेड अनचेंज्ड मोस्टली बाय लंग्स. नाइट्रस ऑक्साइड का मेटाबॉलिज्म नहीं होता. नाइट्रस ऑक्साइड जो है अनएक्सचेंज ब्लड से रिमूव करते हैं जस्ट लाइक डिफ्यूजन एंड इट डजंट अंडरगो एनी क्लिनिकल चेंज इन द बॉडी बट इट कॉजेज मायोकार्डियम डिप्रेशन. अब तक के जितने भी एनेस्थीज, जितने भी एलएस पड़े हैं हमने, चाहे वो ईथर हो, चाहे वो एथाइल क्लोराइड हो, चाहे वो हैलोथेन हो, चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड हो. ईथर को छोड़ दो, ईथर शुगर बढ़ा रहा था, बट अगर हम बात करें एथाइल क्लोराइड की, अगर हम बात करें हैलोथेन की, और अगर हम बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की, और तीनों का एक्शन जो है हार्ट पे डिप्रेसिंग रहता है. तीनों हार्ट पे डिप्रेसिंग करता है. जो हैलोथेन होता है वो लंग्स के लिए अच्छा होता है, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेट रहता है, बट हार्ट डिप्रेस करता है. एथाइल क्लोराइड हार्ट डिप्रेस करता है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी हार्ट डिप्रेस कर रहा है यहाँ पे. सो नाइट्रस ऑक्साइड में प्रिस्टले एंड हम्फ्रे एंड होराइस वेल्स पूछ सकता है. फर्स्ट प्रिपेयर किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था. और सजेस्ट किसने किया था? हम्फ्रे ने किया था. तो उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हैं. साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इसके? पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया वॉमिटिंग. देखो नोज़िया वॉमिटिंग कर सकता है, ये बहुत ही कॉमन फीचर है इसका. इट्स क्रॉनिक यूज कॉजेज बोन मैरो डिप्रेशन. बोन मैरो को डिप्रेस कर सकता है. विटामिन B12 और फॉलेट मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस कॉज कर सकता है. मतलब जो आपको विटामिन B12 है, इंट्रिंसिक फैक्टर है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है. फॉलेट के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सकता है. बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो सकती है, फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है. बोन मैरो को सुप्रेस करता है. तो बोन मैरो सुप्रेस होगी तो बेसिकली कहाँ पे इफेक्ट आएगा? बोन मैरो अगर सुप्रेस होगी तो सारे के सारे जो ब्लड सेल्स हैं, जो ब्लड है, अनीमिया हो सकता है उससे, इन्फेक्शन हो सकता है अगर WBC कम हो गया तो बोन मैरो पे इफेक्ट है, विटामिन पे डिफेक्ट है. ठीक है. उसके बाद इट शुड बी अवॉइडेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी टू अवॉइड टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स. इट डज कॉज टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स, इसलिए इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ नहीं करते. ऑगमेंट्स रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑफ थायोपेंटॉन एंड ओपियोइड्स. रेस्पिरेशन में डिप्रेसेंट का काम करता है ये. ठीक है, डिप्रेसेंट का काम करता है ये. एनोटॉक्स एपरेटस. एनोटॉक्स एपरेटस इज पास्चराइज्ड premised N2O O2 at maximum cylinder pressure of 2000. आपको बस नाम याद रखना है कि एंटोनॉक्स जो है वो बेसिकली N2O का एपरेटस रहता है. N2O में यूज़ करते हैं, और एक ऐसा एपरेटस होता है जिसमें कि प्रेशराइज्ड N2O और O2 को मैक्सिमम सिलेंडर प्रेशर पे डाला जाता है, यूज़ किया जाता है. ठीक है. एनोटॉक्स याद रखना, एनोटॉक्स यूज़ करते हैं N2O में. सो बेसिकली N2O का काम अभी तक ब्लड सेल्स पे, बोन मैरो के सेल्स पे, उसके बाद विटामिन B12 पे, फॉलेट पे, उसके बाद ये हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है. एनोटॉक्स एपरेटस cannot determine the level of N2 per tank in N2O pressure gauge on sedation machine because pressure remains constant unlike tank is nearly empty. The most common side effects of N2O O2 are nausea, vomiting, diffusion, hypoxia. Very important. Behavior problems. Okay, behavior problems, behavior changes. बंदे का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है. ठीक है. कॉन्ट्राइंडिकेशन, एम्फासीमास. ओके. सो साइड इफेक्ट्स क्या होता है कि इट कैन कॉज एम्फेसीमा, कैन कॉज इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, कैन कॉज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन. इवन दो इट्स अ रेस्पिरेटरी डिप्रेस relaxant, it can cause respiratory tract obstruction. ठीक है. तो जिन लोगों में रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम्स रहती हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है ये. ठीक है. तो इसको यूज़ नहीं करेंगे लंग्स में, ये लंग्स के लिए ख़राब है. डिप्रेसेंट है, तो डिप्रेसेंट है तो ये जिन लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स रहती है, जिन लोगों की लंग्स की प्रॉब्लम रहती है, एम्फाइजीमा रहता है, ये सब रहता है, वो सब बढ़ा सकता है ये. ठीक है. तो बेसिकली N2O को हम जिनको भी रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम्स रहती हैं उनमें नहीं देते. ठीक है. बिहेवियर चेंजेस इसमें डिफ्यूजन हाइपोक्सिया इसके अंदर है. तो ये हमारे 4 एनेस्थेटिक हमारे एजेंट्स थे जो उनके बारे में डिस्कस किया है. बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्दर थिंग्स. ओके.
The most serious manifestation of local anesthetic toxicity are the appearance of generalized tonic-clonic seizures, activity and cardiac depression leading to arrest. So सबसे ज़्यादा जो सीरियस मैनिफेस्टेशन है एल टॉक्सिसिटी की, अगर किसी की बॉडी में एल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, एल टॉक्सिक हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आ सकते हैं उस बंदे को, प्लस कार्डियक डिप्रेशन हो सकता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो बेसिकली टॉक्सिसिटी में देखी जाती हैं। अगर एल की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा हमें सीजर्स और कार्डियक डिप्रेशन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रांजिट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन डेंटल ऑफिस सिनकोप। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भी डेंटल ऑफिस में सबसे ज़्यादा कॉमन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को क्या कहेंगे, सिनकोप कहेंगे। सिनकोप इज ड्यू टू स्ट्रेस इंड्यूस्ड increased amount of catecholamines which decrease that cause a decrease in peripheral vascular resistance, tachycardia and sweating। बेसिकली पूलिंग हो जाएगी और टेकिकार्डिया होगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगा और स्वेटिंग होगी, इस वजह से सिनकोप आता है, ठीक है, स्ट्रेस कंडीशंस की वजह से। तो ये याद रखना। नाउ थायराइड स्ट्रोम इज सडन सीवियर एग्जैबरेशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। कई बार कुछ लोगों को थायराइड स्ट्रोम आ सकता है, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी पता होनी चाहिए आपको कि भी एल की टॉक्सिसिटी इससे क्या हो सकता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि भी चेयर पे बैठे बैठे कैसे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। फिर आपको पता होना चाहिए कि भी जो लोग थायराइड के पेशेंट्स रहते हैं, थायराइड इज़ वेरी कॉमन, तो थायराइड स्ट्रॉम क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। इट इज़ प्रेडिक्टेड बाय इन्फेक्शन, प्रेसिपिटेटेड बाय इन्फेक्शन। अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन हो जाए, सर्जरी, ट्रॉमा, प्रेगनेंसी या फिर कोई भी फिजियोलॉजिकल इमोशनल स्ट्रेस है, तो उसमें थायराइड स्ट्रोम आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट साइन ऑफ डेवलपिंग थायराइड स्ट्रोम इज एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर एंड हार्ट रेट। ऐसे लोगों में क्या होगा, हार्ट रेट, दिल की धड़कनें शुरू बढ़ जाएंगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बॉडी वार्म हो जाएगी। सो ये थायराइड स्ट्रोम है। उसके बाद ट्रीटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एनी प्रोसीजर, वीनस एसेस शुड बी अटेंड, ठीक है। क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन स्टार्टेड एट अ मॉडरेट हाई rate. Patient should be kept in calm as possible and then transported to hospital where antithyroid and sympathetic blocking drugs can be administered. अगर आपके पास एंटीथायरॉयड ड्रग्स हैं, आपको पता है ऑलरेडी सब कुछ, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप ऐसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पे ये सब मिल पाए। आपको क्या करना है, वीनस एसेस रखना है, क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन आप दे सकते हो मॉडरेट हाई रेट पे, और काम रखना है पेशेंट को। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। Next is talking about cardiopulmonary resuscitation. Okay. So cardiopulmonary resuscitation is a restoration of cardiac output and pulmonary ventilation following a cardiac arrest and apnea. Using artificial respiration, manual closed chest compression or open chest cardiac massage. होता क्या है, अगर किसी बंदे को कार्डियक अरेस्ट या एपनिया हो जाए, सांस नहीं आए, या फिर अगर कार्डियक अरेस्ट हार्ट पंप करना बंद कर दे, तो उस केस में क्या होना तो होता है, वी यूज़ आइदर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या फिर मैनुअल क्लोज्ड चेस्ट कंप्रेशन। बंदा खुद हाथ से चेस्ट को कंप्रेस करे या फिर मसाज दे, हार्ट को मसाज दे, जिससे कि कार्डियोपल्मोनरी रिससेशन हो। ये एक टाइप की रेस्टोरेशन है कि वापस से हमने कार्डियक आउटपुट और वापस से हमने अपनी वेंटिलेशन बना ली। अगर अरेस्ट आया किसी को या एपनिया हुआ, तो हमने मसाज किया, कार्डियक मसाज, चेस्ट कंप्रेशंस करी, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दी, उसके बाद अगर हम रेस्टोर कर सकते हैं अपना सब कुछ, दैट इज़ कार्डियोपल्मोनरी रिससिएशन। द मोस्ट मेडिकल इमरजेंसीज In most medical emergencies, the easy technique for opening the victim's airway is to strike him on the back. ठीक है, the back blows are given on the middle of the back of the patient and this produces cuff impulses. कई बार क्या होता है, एमरजेंसी केसेस में हमें विक्टिम का जो एयरवे है, मतलब बेसिकली अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा, तो वी हैव टू ओपनिंग द विक्टिम एयरवे इज टू स्ट्राइक हिम ऑन द बैक। उसकी बैक पर स्ट्राइक करना पड़ता है, बैक ब्लोज देने पड़ते हैं इन द मिडल ऑफ द बैक, ताकि उसका एयरवे चालू हो, कफ इम्पल्स आए उसको, ठीक है। द विक्टिम इज, अगर अनरिस्पॉन्सिव है तो विक्टिम इज मेड टू लाई सुपाइन। अगर फिर भी कोई नहीं कुछ हो रहा तो सुपाइन पोजीशन में उसको लिटा दो, सिंपल जैसे लिटाते हैं, ठीक है।
The primary airway hazard for an unconscious patient in supine position is tongue obstruction. लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाने का खतरा क्या होता है कि उसकी जो टंग है वो पीछे ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, बंद कर सकती है एयरवे को. If the head is higher than feet, then blood supply to the brain may be reduced. The first step when initiating PCR is to establish responsiveness. ठीक है, first step of initiating. Now, responsiveness को establish करना होता है कि बंदा response करने लग जाए. ठीक है, that is the purpose of CPR. In an unconscious patient, there may be obstruction of pharynx by base of tongue and soft palate of pharynx. Since tongue is attached to lower jaw, moving the lower jaw forward will lift the tongue away and open the airway. अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है और गलती से अगर उसकी टंग पीछे बैक जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी तो हम उस केस में लोअर जॉ को अगर बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे तो टंग वहाँ से हट जाएगी. The triple maneuver of maintaining airway is opening and releasing of the airways, head tilt, chin lift, jaw thrust. These are some of the maneuvers of opening airways. ठीक है. Now, the rescuer should be at the victim's side at distance equal to equal to the width of the victim's body and at a level of victim's shoulder. Okay, so आ सकता है क्वेश्चन, नहीं भी आ सकता, not that important. Okay, expired air resuscitation includes expired air resuscitation करनी है तो mouth to mouth breathing, mouth to nose breathing, mouth to airway breathing for expired air resuscitations. Okay, now the early signs of want of oxygen. कैसे पता चलेगा कि भाई बंदे को जो अनकॉन्शियस है या उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसकी बॉडी पेल होनी शुरू हो जाएगी, बॉडी में ब्लू कलर आना शुरू हो जाएगा, साइनोसिस होना शुरू हो जाएगा, ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी, पल्स रेट उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा और टैकीकार्डिया हार्ट रेट उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो जैसे हार्ट रेट बढ़े, अगर पल्स बढ़े, ठीक है, साइनोसिस अगर हो जाता है तो इट मीन्स इट वांट्स ऑक्सीजन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर इन कॉन्शियस पेशेंट्स आर. क्या इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर के? स्टेरेटस ब्रीदिंग, कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है एयरवे की, कैसे पता चलेगा? स्टेरेटस ब्रीदिंग, pronounced retraction of intercostal and supraclavicular spaces, retraction of spaces and hand over the throat. बंदा अपना हाथ थ्रॉट के ऊपर रखता है तो उससे पता चल जाता है, इट्स यूनिवर्सल साइन कि भी ओके देयर मे बी सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे. ठीक है, डॉक्टर कम टू नो. नाउ, एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशंस इन पीसीआर क्या होता है? इस टेक्निक में क्या होता है कि रेस्क्यूअर जो अप्लाई करता है प्रेशर ओवर द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम एट अ रेट ऑफ 80 to 100 पर मिनट. कंप्रेशंस प्रोवाइड करता है स्टर्नम के नीचे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कार्डिक कंप्रेशंस, सीपीआर जिसको हम बोलते हैं. उसके बाद कंप्रेशन शुड बी 60 to 80 मिनट्स इन एडल्ट्स एंड 100 इन चिल्ड्रन. बच्चों में ज़्यादा तेज़ी से कंप्रेशन देना होता है, एडल्ट्स में थोड़ा कम कर सकते हैं, 60-80 कर सकते हैं. दिस कंप्रेशन प्रोवाइड सर्कुलेशन एज वेल एज जनरलाइज इंक्रीज इन इंट्राथोरेसिक प्रेशर. एक तो सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, एक प्रेशर बढ़ाते हैं इंट्राथोरेसिकली टू डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ द हार्ट बिटवीन द स्टर्नम एंड वर्टिब्री. उसके बाद क्या होता है? फॉर नॉर्मल साइज्ड एडल्ट द स्टर्नम शुड बी डिप्रेस्ड अप्रॉक्सीमेटली. क्वेश्चन आता है डायरेक्ट. नॉर्मल एडल्ट के लिए आपको 1.5 से 2 इंच तक कंप्रेस करना होता है स्टर्नम को. ऑप्टिमम स्टर्नल कंप्रेशंस इज द वन विच कैन जनरेट एडिक्वेट कार्डिक पल्स. ओके, तो ऑप्टिमल स्टर्नम कंप्रेशंस होती हैं जिससे कि एडिक्वेट कैरोटिड पल्स जनरेट हो सके. Rescuer should release the pressure after each compression to allow the blood to flow in the chest. Okay. In external cardiac compressions, the compression relaxation cycle should be 60 times a minute. ठीक है, compression relaxation, compression relaxation. Compression to ventilation in a single person is 15/2. मतलब 15 बार कंप्रेस किया, फिर 2 बार वेंटिलेट किया उसको, 2 बार उसको एयरवे मतलब एयर ब्रीथ करवाई, mouth to mouth or either mouth to nose, whatever. Compression to ventilation ratio in 2 people PCR. अगर सिंगल पर्सन है, एक ही अकेला पर्सन पीसीआर कर रहा है तो 15 बार कंप्रेस करो 1.5 से 2 इंचेस तक. उसके बाद 2
वेंटिलेशंस करवाओ। अगर 2 लोग हैं तो 5:1 के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। 5:2 मतलब 2 लोग अगर कर रहे हैं तो 5:1। कंप्रेशन, CPR शुड बी अ रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन एंड माउथ ब्रीदिंग ऑफ कितना होना चाहिए, 4:1। मतलब आप 4 बार कंप्रेस कर रहे हो तो 1 बार माउथ ब्रीदिंग देनी है, बट हम 4 बार नहीं करते, हम ज़्यादा करते हैं। ऑलमोस्ट जितना भी करते हैं 15-20 के हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो उससे 4 टाइम्स लेस हम, जैसे अगर 20 कर रहे हो तो 5 टाइम्स आप ब्रीदिंग करोगे। ओके, सो नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग CPR इंस्पेक्शन। अब असेस कैसे करें? चेस्ट राइज असेस करिए, ठीक है, डेप्थ असेस करिए, प्यूपिल्स को असेस करिए, रेसिक्यूअर के हार्ट की पोजीशन को असेस करिए। इससे आप पता कर सकते हो कि ओके CPR ढंग से दे रहा है बंदा, नहीं दे रहा है। नाउ नोट, इफ़ द एफर्ट्स इन कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिएशन आर इफेक्टिव देयर विल बी कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल्स। अगर कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा होगा ये सारी चीज़ें करने के बाद तो देयर विल बी सम कंस्ट्रक्शन ऑन द प्यूपिल्स, दिखाई देगा, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि भी इफेक्टिव है कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिएशन? बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल्स, पैल्पिटेशंस एंड ऑस्कल्टेशंस। उसके बाद हम पैल्पिटेट करके देख सकते हैं पल्स को, ठीक है। हम ऑस्कल्टेट सुन सकते हैं ब्रीदिंग साउंड्स को, हार्ट साउंड्स को, इन सब समय हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। PCR को पता चल सकता है हमें कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल्स है या नहीं। तो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ CPR, ठीक है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? कभी अगर आप बहुत ज़ोर से कंप्रेस करते हो तो रिब फ्रैक्चर हो सकता है, रिब केज में फ्रैक्चर हो सकता है, स्टर्नम पे फ्रैक्चर हो सकता है, लैसरेशंस भी हो सकती है, ठीक है। स्प्लीनिक रप्चर हो सकता है, डैमेज टू लीवर, निमोनिया। मतलब अगर बंदा गलत पोजीशन पे कंप्रेशन करने लग गया तो किसी और को दबा सकता है। इफ़ PCR is incorrectly applied over xiphoid process, the organ is commonly injured is liver. अगर गलती से xiphoid process पे अगर कंप्रेशन होने लग गई तो वो लिवर इंजर हो सकता है बंदे का, ठीक है, लिवर। ना आउटकम ऑफ कार्डियोपल्मोनरी डिसोसिएशंस, क्या आउटकम रहता है? न्यूरोलॉजिकल रिकवरी 50% केसेस में होती है। अगर आप कार्डियोपल्मोनरी डिसोसिएशन कर रहे हो तो 50% लोगों में न्यूरोलॉजिकल रिकवरी हो जाती है। If the arrest time is less than 6 minutes and PCR time is less than 15 minutes, outcome is satisfactory, ठीक है। आउटकम इज सेटिस्फाई अगर अरेस्ट टाइम 6 मिनट से कम है और PCR का टाइम 15 मिनट से कम है। अगर अरेस्ट का टाइम बढ़ गया 6 मिनट से, मतलब कि आप कंप्रेस करे जा रहे हो बाहर से, एक्सटर्नली कंप्रेशन दिए जा रहे हो और आप मॉनिटर कर रहे हो तो बंदा अभी भी अरेस्ट कंडीशन में ही है, अभी भी उसका 8 कार्डियक अरेस्ट में ही है। तो अगर वो 6 मिनट तक, 6 मिनट से पहले ही अगर वो वापस आ जाता है, अरेस्ट से बाहर आ जाता है, ठीक है, और अगर आपका CPR टाइम ज़्यादा नहीं लगा, आपका CPR टाइम अगर 15 मिनट से कम ही लगा है, आपने 15 मिनट तक ही CPR दे रहे हो तो आपका आउटकम सेटिस्फैक्ट्री होगा। लेकिन अगर अरेस्ट टाइम बंदे का 6 मिनट से ज़्यादा बढ़ गया और CPR टाइम 15 मिनट से ज़्यादा बढ़ गया तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है, ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा बचेगा, ठीक है। उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट कॉम्पोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं कि टैबॉट सोल्यूशन में क्या होता है। टैबॉट में आयोडीन होता है, जिंक आयोडीन होता है, आयोडीन होता है, जिंक आयोडीन होता है, उसके बाद ग्लिसरीन रहता है और पानी रहता है। टैबॉट सॉल्यूशंस एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है पेरिकोरोनाइटिस पे। जब थर्ड मोलस पे स्किन और फ्लैप आ जाता है ऊपर, खाना अंदर जम जाता है, उसको पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। उसमें हम टैबॉट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करता है? टैबॉट सॉल्यूशन, जिसमें कि आयोडीन है, जिंक क्लोराइड है, ग्लिसरीन है। अब मॉन्सल सॉल्यूशन क्या है? मॉन्सल सॉल्यूशन इट कंटेन्स फेरिक सल्फेट, ओके, it contains ferric sulfate. It's a Monsell solution and it acts by precipitating proteins. It precipitates proteins effective in arresting capillary bleeding and post extraction bleeding. Basically bleedings वगैरह को रोकने के लिए, प्रेसिपिटेट करने के लिए प्रोटीन्स को फेरिक सल्फेट यूज़ करता है, ओके। Monsell solution is ferric sulfate solution. Then talk about bone wax. बोन वैक्स क्या होता है? बोन वैक्स में 7 पार्ट्स ऑफ वैक्स का होता है, 2 पार्ट ऑलिव ऑयल होता है और 1 पार्ट फिनोल होता है,
So this is your phenol, 7 parts of wax, and oil has 2 parts. ओके, कॉर्नल सोल्यूशन में क्या होता है, कॉर्नल में इट्स बेसिकली फॉर फिक्सिंग द सोल्यूशंस. ओके, फिक्सिंग के लिए यूज़ करता हूँ. तो बेसिकली अल्कोहल आपके पास 6 ml, क्लोरोफॉर्म आपके 3 ml, और एसिटिक एसिड आपके पास एक ml. तो क्लोरोफॉर्म आप यूज़ करो 3 ml, अल्कोहल आप यूज़ करो 6 ml, एसिटिक एसिड एक एसिड कंपाउंड है, एक अल्कोहल कंपाउंड है, और एक क्लोरोफॉर्म कंपाउंड है. मिकिन सोल्यूशन में क्या होता है, ब्लीचिंग के लिए यूज़ करता है मिकिन को. ओके, मिकिन को बेसिकली ब्लीचिंग के लिए यूज़ करता है, याद होना चाहिए. और कॉम्पोजिशन में क्या रहता है इसकी, एनेस्थेटिक ईथर, HCl H2O2. बेसिकली ब्लीच कैसे करोगे, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए, एसिड चाहिए, एनेस्थेटिक एजेंट चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाइट हेड वार्निश. बहुत बार पूछते हैं वाइट हेड वार्निश. बेसिकली पिगमेंटेशन आइडोफॉर्म कंपाउंड है. आइडोफॉर्म है, बेंजोइन है, सॉर्टेक्स है, बाल्सम ऑफ टोलू है, सॉल्वेंट ईथर है. इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एरोमेटिक रेजिन्स विच स्लोली ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस benzoic acid, which is potent antiseptic. Basically, it acts as an antiseptic. Whitehead varnish act as an antiseptic. Okay, composition पता करना. Then we have a condition and a nerve injured. We have a condition called as Denker operation. Denker operation में हमारे पास anterior superior alveolar nerve, anterior superior alveolar nerve जो इंटीरियर पार्ट है उसका वो डैमेज रहता है. डेंकर, डेंकर आप उसको याद रखो कि डेंकर बोलते हैं उसको. उसके बाद सर्जिकल रिमूवल ऑफ माइलोहाइड्रिज. अगर माइलोहाइड्रिज हटाई जाती है, जैसे कि ये मैंडिबल है, तो ये अगर माइलोहाइड्रिज इसके अंदर से हटाते हैं तो सर्जिकल रिमूवल करते हैं, तो क्या होगा, कौन सी नर्व इंजर्ड होगी, लिंगुअल नर्व इंजर्ड हो सकती है कि वहाँ पे लिंगुअल नर्व प्रेजेंट रहती है. सब मैंडिबुलर और रेजिडेंस इंसिजन अगर आप दे रहे हो, ठीक है, रेजिडेंस इंसिजन ऐसे देते हैं, रेजिडेंस इंसिजन्स बेसिकली पैरोटिड को रीच करने के लिए. और सब मैंडिबुलर एरिया में अगर आप दे रहे हो तो आप मीडियल मैंडिबुलर ब्रांच को अफेक्ट कर सकते हो. मीडियल मैंडिबुलर ब्रांच यहाँ से निकलती है. फिर उसके बाद प्री ऑरिकुलर इंसिजन्स अगर आप दे रहे हो तो इंसिजन एक्सटेंड्स डाउनवर्ड बियॉन्ड द अटैचमेंट ऑफ पिना, इंजरी टू फेशियल नर्व कहना, क्योंकि पैरोटिड से फेशियल नर्व निकलती है. एंड अपर मार्जिन ऑफ इंसिजन इज कर्व्ड एंटीरियरली इन ऑर्डर टू सेव ऑरिकुलर टेम्पोरल. तो बेसिकली आपको अपने मार्जिन कर्व करने पड़ते हैं. एक तो आपको नीचे की साइड से फेशियल नर्व बचानी होती है, और ऊपर की साइड से आपको ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व बचानी होती है प्री ऑरिकुलर इंसिजन में. उसके बाद सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड अगर आपको करना है, पैरोटिड को हटाना है, तो आपकी फेशियल नर्व खराब हो सकती है क्योंकि पैरोटिड में फेशियल नर्व होती है. ट्रांसओरल सियालो लिथोटॉमी और सबमैंडिबुलर ग्लैंड अगर आपको करनी है, सियालो लिथोटॉमी करनी है बेसिकली, तो लिंगुअल नर्व. तो बेसिकली सबमैंडिबुलर एरिया में, सबमैंडिबुलर एरिया में लिंगुअल नर्व प्रेजेंट रहती है. और प्री ऑरिकुलर एरिया में 7th नर्व और ऑरिकुलर टेम्पोरल रहती है. पैरोटिड में 7th नर्व रहती है. मायो हाइलाइट रीजन में फिर से लिंगुअल नर्व रहती है. और सब मैंडिबुलर रीजन में मैंडिबुलर ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व भी होती है. और डेंकर ऑपरेशन में एंटीरियर सुपीरियर नर्व प्राइज जाती है. तो ये सब चीज़ें याद करनी है, ठीक है, एग्जैक्ट आपको याद करनी है. एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. द नेक्स्ट वीडियो टॉकिंग अबाउट शॉक एंड हेमरेजेस. And if you have any doubt, you can ask, and I'll see you in the next video. Bye bye.